Okay, yesterday we have completed exercise 3.4 first question. So today we'll start with question number 2, first one. In this one, first I have just assumed the numerator as x and denominator as y. Correct. So therefore the fraction will be what? Fraction क्या होता है? Numerator upon denominator. Correct ना? It will be x by y. In the question it is given that if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, यदि हम numerator में से 1 माइनस कर दें, नहीं ऐड कर दे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दे तो फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू 1. तो फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव दिस इज एक्सरसाइज 3.4 sorry. According to the question we have what, x plus 1 and upon y minus 1 is equals to 1. If you simplify this one you will get what, x plus 1 is equals to y minus 1. If you take this y to this side, it will be x minus y is equals to minus 2. This is equation number 1. Is it clear to everyone or any confusion in this equation? Students, is it clear? No. Similarly, Yes. similarly, the second equation, it is also given in the question. It becomes 1 by 2. That means that fractions become 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. यदि मैं केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2. मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना है तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2. ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1. और यू कैन राइट, अब यहाँ पे मेथड नहीं लिखा है कौन से मेथड से करना है, आप कोई भी मेथड कर सकते हो. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो विच मेथड यू वांट टू डू हियर? आपको क्या लगता है कौन सा मेथड आसान होगा? सर लिखा है एलिमिनेशन. हाँ चलो ठीक है, एलिमिनेशन लिखा है तो एलिमिनेशन ही करना है. वैसे भी एलिमिनेशन आसान है. देखो यहाँ पे माइनस वाई यहाँ पे भी है और माइनस वाई यहाँ पे भी है. यदि दोनों का सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? सेम साइन हो तो हमेशा हम माइनस करते हैं, अपोजिट साइन हो तो हमेशा ऐड करते हैं. तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट माइनस सेकेंड वी हैव. तो क्या होगा, फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 और सेकेंड हमारा आ गया है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. अब दोनों को हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा. इट विल बी व्हाट, x माइनस 2x इज माइनस x एंड दिस वन इज कैंसल आउट. माइनस 1 and minus 2 is minus 3. Therefore the value of x is 3 and therefore the value of y, if you substitute this in the equation number 1, you will able to find the value of y. You can substitute this in the second also. Second में substitute करना है तो second में भी substitute कर सकते हो. We have x minus y is equals to minus 2. Therefore 3 minus y is equals to minus 2. Therefore minus y is equals to minus 2 minus 3 and therefore y is equals to 5. Therefore the numerator will be 3 and denominator will be 5 and you are supposed to find the fraction. Therefore the fraction will be what, numerator upon denominator. So numerator is 3 upon 5. Is it clear or any confusion is there in this one? सबको clear है? 3/5 आंसर आएगा. You can verify the answer whether it is correct or not. If still anybody have any confusion, unmute yourself and speak. Clear है सबको? Yes, sir. यस सर. Now moving to the question number 2 of this second one. Question number 2, second का second. The question is what, 5 year ago, 5 साल पहले की बात है. मूवी में आता है ना 20 साल पहले, 10 साल पहले, ऐसा करके आता है. तो 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी जो है वो सोनू के उम्र के 3 टाइम थी. ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू एंड 10 year later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी जो है वो जो 3 टाइम थी वो 2 टाइम ही रह गई सोनू का. तो व्हाट विल बी द एज ऑफ नूरी एंड सोनू?
तो पता नहीं है हमको, तो एज्यूम ही कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में तो एजम्पशन वाला सिस्टम चलता ही रहता है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Nuri and Sonu Nigam be X years and Y years respectively। मैंने मान लिया कि नूरी और सोनू जो है अभी उनकी वर्तमान उम्र जो है वो X ईयर और Y ईयर है। ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? साल, वर्ष। साल। एक्स वर्ष और वाई वर्ष है, राइट। तो एज पर द क्वेश्चन, तो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव टू इक्वेशंस। पहले तो ये बोला है कि ये जो नूरी है वो सोनू का थ्राइस है। तो हियर x इज इक्वल्स टू 3y गिवन है, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आपको उस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यू कैन राइट इन दैट फॉर्म ऑल्सो। क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में? x माइनस 3y, क्या लिख रहा हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। हाँ यस बेटा, क्या बोल रहे हो? 5 years ago भी लिखा है ना, तो अरे पहले तो अभी तो देखो ना। अच्छा हाँ, ये तो भूल ही गया, 5 साल पहले की बात है ये। वेरी गुड, आपने मुझे याद दिलाया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया था। 5 साल पहले तो गए नहीं हम। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x, तो 5 साल पहले कितना होगा? x माइनस 5। यस सर। या प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y, 5 साल पहले y माइनस 5। यस सर। y माइनस 5। अब ये 3 टाइम होगा, इस तरह से क्वेश्चन होगा, सही है। तो x minus 5 is equals to 3y minus 15, and therefore this equation will be x minus 3y is equals to minus 10. This is equation number 1. Is it clear now? And then after 10 year later, again we have a second equation again. तो 10 साल बाद उन दोनों की उम्र, ये अभी प्रेजेंट x है, तो 10 साल बाद इतना, हाँ ये y प्लस 10 हो जाएगा। y प्लस 10। अब ये जो है नूरी, इसका डबल है, डबल ही बोला है ना, twice, yeah, twice means double. It will be x plus 10 is equals to 2y plus 20. So this will be equals to what? X minus 2y is equals to 10. This is equation number 2. It is very clear. यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, सेम है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट और फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, दिस x will be eliminated. So I am going to subtract this first equation from second one. So second minus first, we have x minus 2y is equals to 10 and x minus 3y is equals to minus 10. Minus, here minus minus plus, minus minus plus. So this one is cancel out. Plus 3y minus 2y is y, and 10 plus 10 is 20. Therefore, the present age of Sonu will be 20 years. This is the present age of Sonu. Huh? Therefore, the present age of Sonu will be this much, and present age of नूरी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? कहीं पे भी रख देते हैं, दूसरा वाला इक्वेशन में रख देते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 है, तो इसमें y की जगह पे रख दो 10, 20 सॉरी, इज इक्वल्स टू 10। इट विल बी x माइनस 40 प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू 10। तो नूरी विल बी 50 ईयर ओल्ड। चेक करो पीछे आ रहा है कि 50 साल और 10 साल, 20 साल। वेरीफाइड। Is it correct? Yes, sir. Just copy it. If anybody have any query, then ask. Okay, now moving to the question number 3.
Moving to the question number 3 of this second one. The question is the sum of the digits of a two-digit number is 9. That means in a two-digit number there are two places, unit place and tens place. If we add that two digits, we will get 9. ठीक है. Also 9 times. 10x plus y. हाँ बेटा, कोई भी दो डिजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 10 into tens place plus unit place. The general method to write a two-digit number is 10 into tens place plus unit place. Correct. तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे. तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट हमारे पास नहीं है, पता नहीं है, तो लेट वी आर एज्यूमिंग दैट यूनिट प्लेस इज y and tens place be x. So let tens place be x and units place be y for any two-digit number. ठीक है, ये हमने मान लिया कि टेंस प्लेस जो है वो x है और यूनिट प्लेस y है. तो therefore the number will be of the form. नंबर कैसा होगा? अभी मैंने बताया 10 into tens place. 10 into tens place होता है and plus unit place. ये this is the general method. Units place. तो the number will be what? 10 into x. Tens place क्या है हमारा? x है and unit place is y. This statement is clear to everyone or any confusion is there? सर क्लियर है. क्लियर है, वेरी गुड. फ्रॉम द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे जाते हैं हम. दोनों डिजिट को जब हम ऐड कर देते हैं x plus y, we will get 9. पहला केस तो क्लियर है कि दोनों को यदि हम ऐड करें दोनों डिजिट को तो मिलेगा हमको 9. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. मतलब ये नंबर का 9 टाइम हम करें और नया नंबर जो बनेगा, यदि हम डिजिट को रिवर्स कर दें, यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस पे लेके चले जाएं और टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस पे लेके चले जाएं, तो क्या होगा? यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन रिवर्सिंग डिजिट, ऑन रिवर्सिंग, या फिर नीचे ही लिखते हैं, यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ लिखते हैं ऑन रिवर्सिंग डिजिट, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, न्यू नंबर विल बी व्हाट? न्यू नंबर इज इक्वल्स टू, पहले 10x plus y था तो 10y plus x हो जाएगा. x को y की जगह पे कर दिया, y को x की जगह पे कर दिया, तो नया नंबर ये है. तो जब रिवर्स कर दिया तो क्या हो गया? क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, किसका? ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम. तो ये 10x plus y का 9 टाइम is twice the number obtained by reversing the order of the digit. मतलब इसका डबल है, इसका 9 टाइम ये 10y plus x का डबल है. This statement is clear. How I have written this 9 into 10x plus y is equals to 2 into 10y plus x. Students, is it clear? सर एक बार और बता दो ना ये वाला. हाँ, Yes, sir. देखो ये ओरिजिनल नंबर है हमारा और रिवर्स करने पे ये नंबर आता है. ये क्लियर है आप लोगों को? 10x plus y and 10y plus x, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला गया है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम जो है रिवर्स वाले नंबर के 2 टाइम के बराबर है. तो ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम यही होगा आपका 9 into 10x plus y. क्लियर? एंड द 2 टाइम ऑफ दिस वन, इसका 2 टाइम क्या होगा? 10y plus x का 2 टाइम यही होगा. यही तो क्वेश्चन में बोला गया है, वो मैंने लिख दिया. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. तो इसको सिंप्लीफाई हाँ, करेंगे, हाँ, इट विल बी 9 10 जा 90x plus 9y is equals to 10 2 जा 20y plus 2x. Hope this one is also clear to everyone. Now if you simplify this one, it will be what? 90 minus 20, so 70x minus 9 minus
सॉरी प्लस होगा ये 9 माइनस 2x 7x इज इक्वल्स टू 0। हाँ बोलो। सर हाँ 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 सर 9 90x माइनस 20y थोड़ी होगा। सर वही तो 90 माइनस 2x होगा ना। मतलब आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हो, वेरी गुड। सर 88x वो हाँ आएगा। यू आर राइट, यू आर राइट। 90 माइनस 2x इज 88x, करेक्ट। एंड माइनस, सर 9 और 2 कॉमन निकाल के पहले। अरे क्यों कॉमन ले रहे हो, माइनस कर दो ना मेरे भाई। आप कॉमन लेके करना है तो कॉमन लेके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आएगा, ठीक है। कॉमन तो पहले। ये अब हाँ सही है सर ना। कॉमन तो पहले। देखो मेरी बात सुनो, 90 माइनस 2x करोगे तो 88 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ये। यस सर। हाँ, अब 9 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 11 y इज इक्वल्स टू 0। अब 11 से दोनों डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, तो 11 8 जा 88 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 8x। लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। हमको तो कौन सा मेथड करना है, एलिमिनेशन, तो कोई बात नहीं, एलिमिनेशन कर देते हैं। ये अंडू कर दो, ये सेकंड इक्वेशन आ गया हमारा। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, इज इट क्लियर। अब दोनों को सॉल्व कर दो। यहाँ पे प्लस वाई था, यहाँ पे माइनस वाई है, तो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड वी हैव, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड सेकंड वन इज 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये y y कैंसिल, 9x इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स x is टू equal to 1 1, x की वैल्यू 1 आ 1 गई। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू 80 आएगी ना, यहाँ पे रखेंगे तो therefore y is equals to what, 9 minus x, तो 9 minus 1, तो y is equals to 8। तो नंबर क्या होगा, 18 होगा 18। 10x प्लस y है ना, तो 18 होगा। 10 इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारा 1 प्लस 8, therefore the number will be 18। Is it clear to everyone? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। यस सर हो गया, इजी है सर। हाँ लिख लो अभी इसको, बस ये आज के लिए इतना ही रहेगा, इसको लिखोगे तब तक टाइम हो जाएगा। तो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 इन द नेक्स्ट क्लास, दैट मीन्स टुमारो, ठीक है।